On the inaugural episode of Witty and Wise, starting with an absolute bang, we have a familiar face that you have seen somewhere or the other, be it on the television or on those giant Amazon billboards. She's an award winning actress, a fantastic storyteller, and an even better poet. The perfect next door neighborhood girl every mother would love to have. Ladies and gentlemen, please welcome the beautiful Shweta Tripathi. Tell me about your kirdar, that is Gulu. Them who chooses us. Tell me, did it motivate you on set while working with Pankaj Tripathi? Then I knew that this is exactly what I want to do. What is manifestation and how do you do it? Most of my work is A rated. But today I feel people are going only for the content. So people need such type of content. Working with Nawaz Bhai was a workshop in itself. Marriage में space बहुत जरूरी है. Yeah. पापा, मम्मी, दीदी और मैं. Tell me, what is love? What is love for you? How are you? All right. Congratulations. Thank you. First are always very special. ये क्योंकि आपका first है तो इसलिए हम भी बहुत ज़्यादा excited हैं. Same here. Super excited for this show. Thank you for doing this, Shweta. No, of course. Thank you for being our first guest for the show. That's Witty and Wise. And So- all things bright. Yes. Yeah. Absolutely. तो मुझे ये जानना है that why did you think about doing this? ये आपको क्यों करना था? So as I said, I was into digital marketing, doing collaboration with brands and all advertising and marketing. But मेरे को ना, see, I'm a 23-year-old, right? So I feel कि बहुत कुछ करने के लिए there's a life, right? I want to explore more. And also I wanted to do something that is out of my comfort zone. And I feel this is more challenging for me because I've never been on camera. जो भी हुआ shoot वो camera के पीछे हुआ है. So this is little challenging. So I was like, let's start with podcast and we can, invite guests, known personalities like you. So you can share your stories and experiences and it is, easily available to the audience. So they can also learn from your experience and your stories. And वहाँ से it was like, let's start with the podcast. And yours. Yes. आजकल की दुनिया में there is a lot to learn from digitally what's happening around us. But I think it's also very important to be mindful of who we are. Right. जैसे आपने बात बोली कि डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं या सेलिब्रिटीज हैं Right. तो उनकी सब सुन रहे हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपनी सुनना बंद कर देते हैं एंड आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि हम क्या चाहते हैं हम ठीक है जो चीज़ें बेच रहे हैं बट व्हाट आर द थिंग्स दैट वी बिलीव इन बी इट प्रोडक्ट्स बी इट अ कॉन्सेप्ट और बी इट एन इमोशन सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट आई कीप ट्राइंग टू रिफ्रेश रिकॉल रिमाइंड माई सेल्फ दैट वो वॉइस मत भूलो Right. कि तुम Absolutely. कौन हो. Right. So, Shweta, almost everyone knows you from the super hit web series that's Mirzapur. There are so many people who knows you from Masan. And I was just having a conversation with my team and they were like, there's a other community who have like literally grown up while watching you. Kya mast hai life. Yes, which by the way is one of my सबसे दिल के करीब characters because I think I am very much like Zenia Khan. True. मतलब even the colors, the way she used to dress up, the way she thinks. Right. ये and Tanmay and Karan had written this, Tanmay Bhatt. Tanmay Bhatt. तो मैंने जीनिया से बहुत कुछ सीखा. I love Zenia. Zenia was the one who got me into this whole world, introduced me to the. She opened the doors for me because उससे पहले before क्या मस्त है life, I didn't know how must life could be as an actor. And एक बार वो हो गया, then I knew that this is exactly what I want to do. And it was Thank your you, first Zenia. show, right? It was, yes, and I had no idea कि क्या करना है, कैसे करना है, शो करूँगी, फिल्म करूँगी, बस ये पता था कि एक्टिंग में कुछ करना है. Yeah. Because since I was, I think 4 years old, I have been on stage. एंड मैं उस मज़े को आज तक चेज कर रही हूँ. इट्स एज सिंपल एज दैट. वो मुझे मज़ा जहाँ भी मिल जाता है, चाहे वो एक पॉडकास्ट में हो, चाहे वो स्टेज पे हो या फिर बिहाइंड द माइक हो या इन फ्रंट ऑफ द कैमरा हो. दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू अचीव एंड एज मच ऑफ इट एज पॉसिबल. So let's talk about your character Sandhya in Haramkhor movie.
You know, what made you choose that film, that script? Because in my opinion, it is super underrated film. Your performance was so amazing. Like, I want to know the whole experience behind the Haramkhor movie. पहले तो आई थिंक मोस्ट ऑफ माई वर्क इज ए रेटेड, नॉट बाय चॉइस. वो आई थिंक हो ही जाता है, चाहे वो मिर्ज़ापुर हो या मसान हो या हरामखोर हो. I think more than us choosing projects and stories, it is sometimes them who chooses us. With Haramkhor, what happened was Shlok Sharma, who's the director, writer of the film, he chose to work with me. उनका वो डेब्यू करने वाले थे और उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी जो आज तक बनी नहीं है, एंड आई एम होपिंग इट विल बी मेड वेरी सून. एंड फॉर सम पर्सनल रीजंस वो स्क्रिप्ट फिल्म में नहीं बन रही थी, पर श्लोक ने, एंड दिस वाज वेरी एक्चुअली आई डिड अ शॉर्ट फिल्म विद श्लोक फर्स्ट कॉल्ड सुजाता, एंड उसमें आई प्ले हुमा's younger self. Okay. So that is how we had met. In fact, Anurag Kashyap and Guneet Monga, they were working partners तब in AKFPL. और तब हम लोग एक शूट से आए थे और मैं नॉन स्टॉप being myself, I was just talking and yapping and narrating the few people. In fact, Vasan Bala was a part of this, because Vasan Bala and I were on we both were ADs on a project together called Trishna. It's my Riz Ahmed. My God, I feel so happy when I myself hear the people that I worked with. So usme there was Riz Ahmed and Frida Pinto, and the director was Michael Winterbottom, and Vasan the usme, and that was my first and only project as an AD. एंड आई लर्न सो मच. एंड इसलिए मुझे लगता है कि ना, अगर आप कुछ सीखते रहो तो फिर आप जो भी कर रहे हो लाइफ में चलेगा, लेकिन वो लर्निंग एंड ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो पूरा शूट रैप हो गया था, एंड देन आई हैड कम, तभी मेरी कुछ एक स्किन का बायोप्सी हुई थी. सो आई हैड कम ओवर देयर एंड आई वाज जस्ट ऑन एंड टेलिंग द पीपल. हमारी बातें चलती रही, एंड देन नेक्स्ट थिंग आई न्यू इज दैट आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम श्लोक about a short film that he wanted to do, which was Sujata. Interesting. फिर वहाँ से बात चालू हुई, and then we knew that we wanted to work together because there are certain people who share the same passion and respect for the kind of work you want to do. True. So वो जब alignment हो जाती है ना, then you always wish and hope and pray that आप उन लोगों के साथ काम again and again कर रहे हो. आप उनका हाथ पकड़ के उनको कभी आप उनको मोटिवेट करो, कभी वो आपको इनकरेज कर रहे हैं. सो वी न्यू कि ये तो हमें साथ में करना है. एंड फिर जब हरामखोर की बात आई, जब मैंने कहानी सुनी और मुझे पता चला दैट नवाज भाई इज गोइंग टू बी इन इट, आई डोंट थिंक आई बिलीव्ड इट, बिकॉज आई मीन आई वाज लाइक ऐसा थोड़ा मेरा लक हो सकता है कि मेरी डेब्यू फिल्म, because Haramkhor was shot before Masan. So right. That was actually the first feature film that I was a part of, वो जो introducing आता है. So that was it. And I thought कि अभी नवाज भाई niceness ने, अच्छाई में, because Shlok and he had worked together on Gangs of Wasseypur. तो ऐसे शायद इसलिए उन्होंने हाँ बोल दिया होगा, but नवाज भाई तो नहीं करेंगे. And then as and when we kept getting closer to the date of shoot, and then फिर नवाज भाई से जब बात हुई, it was too good to be true. And really I could not had a better debut film. And why? Because working with नवाज भाई was a workshop in itself. जबकि वो ऐसा नहीं कि वो ज्ञान बांट रहे थे या वो प्रीची बन रहे थे. He was just being himself. He gave me a new actor, a fresh actor, so much space, gave me respect. He used to ask me before scene कि अच्छा बताओ श्वेता ये कैसे करना है. Oh, nice. And ये नहीं कि वो टेस्ट कर रहे हैं कि बताओ श्वेता ये कैसे करना है. He was just very open and he used to hear me out. And then फिर जो स्क्रीन के सामने क्रिएट होता था उसमें इतना मजा आता था, and I cannot wait to work with him again. So tell me, did it motivate you on set while working with Pankaj Tripathi, Nawaz, all the seniors actors? So क्या क्या सीखने मिला उनसे? सिर्फ ऑन सेट नहीं, इवन ऑफ सेट. ओके. बिकॉज यू नो एज एन एक्टर आपकी जो ऑन स्क्रीन हो रहा होता है वो तो हम सबको दिखता है, पर जो ऑफ स्क्रीन होता है ना, वहाँ पे जो आप बातें सुनते हो, आप जो बातें समझते हो, जो करते हो, वहाँ पे लर्निंग का बहुत स्कोप होता है. सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी चूजी विद द काइंड ऑफ पीपल दैट आई वांट टू कोलैबोरेट विद, बिकॉज यू आर गिविंग योर टाइम, एनर्जी, एफर्ट, एंड ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं.
more than anything else, because I am somebody who believes in energies. So, and I think I receive them also. I am sensitive, which helps me with the job profession that I've taken. Empathy होना बहुत ज़रूरी है. तो जब आपके पास you're surrounded with such good souls, Yes. people who are very secure, who are ready to share their experiences, जैसे कि आप भी सीखो, वो अपनी नॉलेज को या अपनी इंफॉर्मेशन को पकड़ के नहीं रखते हैं, वो बांटते हैं. तो जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हो ना, तो सीखने को तो बहुत मिलता ही है, पर मज़ा बहुत आता है. एंड ऑल्सो देन यू नो देर इज़ अ रूट ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ ओपन. Right. तो वो डर नहीं लगता है. एंड आई थिंक मैं भी थोड़ी ऐसी निडर टाइप की हूँ, बट आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द पीपल अराउंड मी बिकॉज they never made me feel like that. Nawaz Bhai, being the senior person he is, there was no need to treat me a certain way. Or Pankaj ji, who I call Tripathi senior, बट वो इतनी इज्जत और इतना प्यार देते हैं ना आपको कि वो एक जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है वो बहुत नर्चरिंग इन्वायरमेंट होता है. एंड आई थिंक दैट इवन रिचा चड्ढा फॉर दैट मैटर, they've always made me feel like they've got my back. कि अगर मैं थोड़ा गिर भी जाऊं या लुढ़क भी जाऊं, डगमगा भी जाऊं, बट एंड वो होना एब्सोल्युटली ऑल राइट है. मुझे लगता है आजकल हम ना गलतियां और मिस्टेक्स को बहुत बिग डील बना देते हैं. इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट टू मेक देम. क्योंकि जब वो है ना कि उलझे नहीं तो कैसे सुलझोगे, तो वो भी एक मज़ा है सुलझने का. सो इट्स ऑल राइट to be a little off, because then that's how you will come back on track, and that's also how you will realize, yeah, this is what works for me. True. And this is what I take from this event, this situation, or from these people around me. True. So yeah, I think thank you to my seniors, big thank you to them, because or not just my seniors, to the people around me, to my co-actors from Ali, who's such a beautiful human being who I love and respect so much, or Jeetu, और शशांक और विक्की. मतलब सब एक से बढ़कर एक लड़के हैं एंड लड़कियां हैं जिन्होंने अपना मार्क बनाया है और अपने बलबूते पे. तो ऐसे लोगों के साथ काम करके मजा आता है. एंड यू गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स यार, क्योंकि हर एक की अलग अलग पर्सनालिटीज होती है, राइट? एंड यू गेट टू लर्न फ्रॉम ईच पर्सनालिटीज, लाइक फ्रॉम ईच एक्टर्स. सो इट्स अ ग्रेट थिंग. आई मीन and we keep learning, and that's the thing, that how people treat us कहीं ना वो हमारे दिमाग में और दिल में imprint हो जाता है. True. So then how we treat people also comes from there, I feel. And I feel a responsibility with how I treat newer, fresher actors, because I think I got that much love and kindness from my people. Yes. तो I feel यार कि आपको, if you're blessed, if you're privileged, if you're lucky, ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो फिर उनको बांटते रहो. So let's make the वातावरण थोड़ा बहकाल. So tell me about your kirdar, that is Golu, and how excited you were when you read the scripts. Like, you know, when I saw the first season, you were that, you know, bubbly girl, and then उसका जो transformation हुआ to season 2 and 3 में, like that daring and brave girl. So take us through that journey. गोलू लब है हमारा. I think daring and brave गोलू season 1 से थी. Okay. But her situations and circumstances were very different. I think nobody is born evil. People become a certain way because of the situations and events that they go through in childhood or later on in life. The people that they meet, how those people make them feel. I think Mirzapur has taught me all this. Because मुझे लगता है हम सब अपने एक बबल में रहते हैं जहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, एंड हम उसमें इतना कंज्यूम हो जाते हैं अपने डे टू डे में कि हमें एक दूसरे का दर्द, खुशी, प्यार, सपने वो नहीं दिखते हैं. True. सो जब आप एक ऐसी दुनिया का हिस्सा होते हो जो आपकी खुद की डिज्नी दुनिया से बहुत अलग होता है, I think that's very important to me, because I take care of all those emotions on screen over there. I want my life to be as simple as possible. I love me. I love the people around me. This is the chosen profession by me, thanks to the people, thanks to my upbringing, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है.
तो ये वाली जो है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा खतरा, थोड़ा भौकाल, राइट। थोड़ा खून खराबा, बहुत सारे इमोशंस, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहानी हम कह क्या रहे हैं, हम किन की कहानी बता रहे हैं और हम लोगों को, ऑडियंस को महसूस क्या करा रहे हैं. दैट फॉर मी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आई रिमेंबर मैं एयरपोर्ट पे थी और आई हैड टेस्टेड फॉर गोलू एंड आई हैड रियली एंजॉयड द टेस्ट बिकॉज आई, इनफैक्ट जीनिया एंड गोलू बोथ आर अल्फा, दोनों में वीर रस बहुत ज़्यादा Yes, है, yes. जो कि आई थिंक मुझ में भी है. सो देर आर सर्टन कनेक्शन दैट यू फील फॉर, यू नो, व्हेन यू ऑडिशनिंग. तो कई बार होता है यार, कुछ ऑडिशंस में आपको ज़्यादा मज़ा आता है और कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको बाद में समझ में आते हैं. तो जब मैंने गोलू को ऑडिशन दिया था, मुझे मज़ा आया था. एंड इट वॉज दैट सीन इन फैक्ट कि जो हमने शूट किया था लाइब्रेरी में, कि जब कैनवसिंग के टाइम ललित और कंपाउंडर जो होते हैं वो गोलियां चलाते हैं, एंड जो बबलू होता है फिर वो भी चलाता है. एंड गोलू बहुत गुस्से में हो जाती है कि अगर वायलेंस तुम्हें करना है तो तुम कैनवसिंग नहीं करोगे हमारे लिए. सो दिस वाज माय ऑडिशन सीन. तब ये हो रहा था चाय के ठेले पे. ओके. तो जब हमने सीन किया था, सो दिस वाज की चाय के ठेले पे और हमारी मैम टेलिंग बबलू दिस कि ये गलत बात है. एंड आई लाइक दैट अबाउट हर. I like the fact that even though Bablu, it seemed that time, मैंने स्क्रिप्ट तो पढ़ी नहीं थी पूरी, सीन्स ही मिलते हैं ऑडिशनिंग के टाइम, तो तब मुझे जो पता था, आई डिडंट नो व्हाट एग्जैक्टली बबलू मीन्स टू गोलू और गोलू मीन्स टू बबलू. बट आई न्यू कि दिस डेफिनेटली बबलू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर टू हर because of the way she is talking and what she's saying. And what I loved about Golu is she is somebody who is not afraid to speak her mind. Yes. I like characters like that. डर के आगे जीत है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो है. आई बिलीव इन दैट. फिर वो समझती है दैट मे बी हर इमोशंस गॉट द बेटर ऑफ हर. दैट बबलू ने जो किया वो गोलू के लिए ही किया ना. राइट. तो उसमें वो भी अंडरस्टैंडिंग है. राइट. इंटेंशन वाज नॉट बैड. एग्जैक्टली. एंड इंटेंशन डज मैटर. आप लॉ भी उठा लो या फिर जिंदगी भी उठा लो, इंटेंशन क्या है वो इम्पोर्टेंट होता है. तो फिर देन मैं थी, फिर अभिषेक बैनर्जी का कॉल आया एंड ही टोल्ड मी कि अच्छा वी वांट यू फॉर गजगामिनी गुप्ता. तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, गजगामिनी गुप्ता लेकिन हैं कौन, ज़रा उनको जाने, उनको पहचाने, उनके बारे में पढ़ें. एंड व्हेन आई रेड द फर्स्ट एपिसोड of season 1, starting with the Dula wala sequence, you get introduced into the Tripathi Khandan and Kaling ki factory and even the Pandit family, Guddu, Bablu, Dimpy, parents. I knew I want to be a part of this world because I had not read characters like this. I had not seen characters like this. And then फिर जब गोलू आती है सेकेंड एपिसोड में, and then फिर जो होता है, तो वो पूरे एपिसोड की जो जर्नी थी ना, एज एन ऑडियंस, एज अ रीडर, आई वॉज गेटिंग वेरी एक्साइटेड. और मुझे जानना था कि इन किरदारों के साथ क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है. एंड देन जब तक हम एंड तक पहुँचे, आई न्यू दैट गोलू विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू एंड इन मिर्ज़ापुर, because two of the most important people in her life who are the primary characters are snatched away from her. True. तो जब आप इंसान को ऐसी सिचुएशन में डालोगे तो ये इंसान कुछ तो भौकाली करेगा ही करेगा. सो दैट वाज, आई थिंक व्हेन यू चूज एनी प्रोजेक्ट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक टेकिंग अ बेट कि आपकी इंस्टिंक्ट क्या कह रही है, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है. क्योंकि वो जो गट होती है ना, अगर हम उसको बचा के रखें तो इट विल नेवर लाई टू अस. I think this is something which should be taught in schools as well or practiced at home. Listen to your gut. I chose Mirzapur and Mirzapur chose me because that cast and crew is like family now. Golu is a character that I don't think we have seen on screen. ऐसी लड़की जिसको समझना मुश्किल है. मुझे भी उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि ये कौन है क्या समझती है, बिकॉज उसका फ्रंट फेस इतना स्ट्रांग है. उसके दिमाग में अलग चल रहा होता है, दिल में अलग चल रहा होता है. एंड आई थिंक वो मोस्टली अपने दिमाग की सुनती है. तो वो बहुत ही बल और बुद्धि का प्रयोग, ये एक इतना इंपॉर्टेंट लेसन है जो मैंने गोलू से सीखा है. दिस इज समथिंग दैट माई डैड हैज़ बीन ट्राइंग टू टेल मी सिंस ग्रोइंग अप. किताब कौन सी पढ़ रहे हो और एक्सरसाइज की कि नहीं की.
एंड आई कीप रिपीटिंग दिस बिकॉज आई थिंक अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर आप इफ़ यू केयर अबाउट समबडी, प्लीज आस्क देम दीज 2 क्वेश्चंस. किताब कौन सी पढ़ रहे हो और एक्सरसाइज की कि नहीं की, बिकॉज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज बल और बुद्धि का मज़ा तभी है जब ये साथ में आते हैं. So this is a lifelong lesson that I've taken from Golu, and I love Golu for teaching me so much and making me feel so much feelings and situations and lanes in my mind which I would have never taken अगर गोलू नहीं होते. True. Tell me, do you somewhere relate this Golu character in real life? I think she's more fearless. I think she's more stubborn in a nice way, or well depends in situations. क्योंकि हमारी जो क्वालिटीज़ हैं उनके हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. तो ज़िद्दी होना अच्छी बात है, लेकिन वही कि अगर वो ज़िद्दी ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप कई बार आप देखते नहीं हो, सोचते नहीं हो, क्योंकि आप ज़िद से आप अटक गए हो. So I think there are a few things that I relate to with Kolu, but a lot of things that I don't, and I think that's okay. She is a more complex person. I think I'm a much simpler person. Okay. Yeah, I think उसकी मेमोरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी चाणक्य नीति बहुत स्ट्रॉन्ग है. I think I'm a more Teletubbies kind of Golu is a more human like a being. strategy type of a person. Yeah, and I think मैं strategy नहीं, मैं go with the flow. Go with the flow and emotions. Yes. वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा important है. Yeah. So जैसे मसान में we have seen, you know, your character had an interest in poems. You know, writing poems and all. So do you write poems in real life? My poems are more like nursery rhymes. I try to journal whenever I feel that my emotions have got the better of me. जब वो थोड़े मैं ऐसा overwhelmed feel करती हूँ, तो मुझे लगता है कि क्योंकि thanks to social media, बहुत सारी depending on who you follow and what you follow, the kind of information that you get is dependent on that. So luckily the kind of people, the kind of accounts that I follow are very art and culture driven, very emotion driven. तो चाहे in terms of words or in terms of painting वो हो, तो मेरी I think writing भी वैसी सी है, which is simpler and which I'm absolutely all right with, because सबका अपना अपना फ्लेवर होता है, एंड आई थिंक उस फ्लेवर को समझना और उसको एक्सपैंड करना, उसको ग्रो करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मैं इनफैक्ट वॉज मोर लाइक दीपक, जो शालू के सामने बैठा होता है एंड वो कहता है कि हाँ अकबर इलाहाबादी बशीर बद्र, हाँ मतलब नाम सुने हैं. आई हैड एंड आई एम नॉट प्राउड अबाउट दिस, मुझे नहीं थी उतनी समझ. राइट. वो शालू की वजह से थैंकफुली एंड नीरज एंड वरुण की वजह से, हुआ द डायरेक्टर एंड राइटर ऑफ द फिल्म, आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ पोइट्री. एंड नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ, इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल वे टू कनेक्ट विद पीपल. क्योंकि कई बार लोग एक इमोशन में होते हैं, दे आर अंडर अ बादल ऑफ इमोशंस, अ क्लाउड ऑफ इमोशंस. तो अगर वो क्लाउड आप बड़ा कर देते हो तो वो ना, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द सन, इट गिव्स यू दैट ड्रिजल, इट पुट्स यू इन अ मूड. आई थिंक पोइट्री डज दैट एंड दैट्स व्हाट आई लाइक. कि मेरे शब्दों की वजह से जो मैं कह रही हूँ, जो किसी और के शब्द हैं, बट थ्रू मी आई एम द मीडियम. Yeah. If people are feeling connected to me or to something that has happened in their lives, I feel grateful for that. क्योंकि I think connect होना as human beings बहुत important है हम सब के लिए. We are social beings. So true. तो वो अच्छी चीज़ है. True. So if I have to talk about Haramkhor, Masan and Mirzapur, which is like your favorite character to play? See, the most challenging has been Golu. Yes. मसान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, शालू ने बहुत कुछ दिया है. एंड देन मसान वॉज द फर्स्ट फिल्म. मसान इंट्रोड्यूस्ड मी टू द इंडस्ट्री, टू द ऑडियंस. सो आई थिंक इसलिए मसान बहुत स्पेशल है. हरामखोर बिकॉज ऑफ नवाज भाई, बिकॉज ऑफ श्लोक, शिल्पा, सिद्धार्थ दीवान शॉट इट. तो वो मतलब वो उसकी एक अलग journey थी. My first award also that I got was for best actress, which I shared with Kalki. एंड दिस वॉज एट इफ्ला. हम लोग LA में थे, और जब हम LA में थे तो नीरज का फ़ोन आया था दैट मसान हैज़ बीन सेलेक्टेड. ओ माई गॉड, दिस इज़ व्हाट आई लिव फॉर.
राइट कि आप काम करो, अच्छा काम करो, और आपको इन रिटर्न ऐसा इंटरेस्ट मिलता है ना कि आप उसके फल मैं आज तक खा रही हूँ. लाखों में एक सीजन 2 which I was a part of, which is one of my favorite performances. I got that because of Masan. ये काली काली आंखें happened because of Masan. So there is a lot that I have got. मेहंदी सर्कस, मैं तमिल फिल्म, वो भी डेब्यू डायरेक्टर, वो भी बिकॉज ऑफ मसान. एंड देन मिर्ज़ापुर ने जो दिया है हमें, घर घर का नाम बना दिया है. लोग हमेशा पहले मुझसे पूछते थे आफ्टर मसान है राम खोर की श्वेता आप कमर्शियल कब करोगे, और मुझे लगता था यार कि तुम बाकी लोगों से पूछते हो क्या कि आप कंटेंट ड्रिवन सिनेमा कब करोगे. Right, yeah. सो व्हाई आर यू मेकिंग मी फील दैट दिस इज माय चॉइस, आई एंजॉय डूइंग दिस. व्हाई आर यू टेलिंग मी दैट कमर्शियल इज मोर इम्पोर्टेंट और हैज मोर वेट देन इंडिपेंडेंट और पैरेलल सिनेमा. कहानी क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि आपके सिनेमा हॉल्स कितने आपको वो नंबर मिला है, एंड मे बी वो बाकी लोगों के लिए है, एंड ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट, बट ये मेरी चॉइस है. ट्रू. तो प्लीज़ मुझे ये मत बताओ कि मेरी चॉइस सही या गलत. आप अपनी टिप्पणी श्योर दे दो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज मोस्ट वेलकम, बट प्लीज़ डोंट टेल मी दैट माई चॉइसेस आर इन एनी वे लेसर बिकॉज आई एम गोइंग फॉर कंटेंट. मतलब आई थिंक जो एक्चुअली अब चेंज हो चुका है, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल, या तो आई थिंक मुझे जो प्यार और रिस्पेक्ट और जो ऑडियंस और फैंस मिले हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंटेंट आई हैव चोजन. सो थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज वो फ्यूल आपको ज़रूरी है, वो चाहिए होता है. बिकॉज नो मैटर आप कितना भी सोच लो ना, आपके अंदर की गोलू आपको कह रही है तुम सही हो, तुम सही हो, तुम जो कर रही हो, बट अगर पूरी दुनिया आपको कह रही ना नो 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 नो, तो कहीं ना कहीं तो वो असर पड़ता है आप पे. But thankfully, fans and audience and even media critics, they have been very good and kind, and I'm very grateful for that. True. But this we have also noticed that अभी की जो जनरेशन है, people are going behind the content. पहले के इसमें ऐसा होता था कि people were going to watch movies for hero and actresses, right? राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, उनके नाम पे movies जाते थे. But today I feel people are going only for the content. So people need such type of content. So it's amazing what you are मुझे doing. लगता है कहानियां पहले भी इम्पोर्टेंट थी. एक्चुअली इमोशन पहले भी इम्पोर्टेंट था. Yes. वो जब अमर, अकबर, एंथनी, Yes. बट आप वो मत पकड़ो कि साइंटिफिकली चीज सही है कि नहीं. इमोशन क्या था, एंड आई थिंक दैट इज ब्यूटिफुल. So now apart from movies, I'm more curious to know about your childhood. Okay. Okay, so how was your childhood? Touchwood, I have been पापा, मम्मी, दीदी और मैं. Okay. So it was 4 of us growing up with occasional visits from Dadi and Nani. Nani घर was in Lucknow. पापा गांव से हैं, राम मदारपुर, Okay. जो कि लखनऊ के पास है. Yes. पापा studied, became an IAS officer. मम्मी टीचर, दीदी अभी हेड मिस्ट्रेस. So I come from a very पढ़ाई वाला बैकग्राउंड, एंड आई थिंक दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट एंड हैज़ मेड मी द पर्सन आई एम टुडे. बिकॉज जब आपके घर पे एक इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है ना, कल्चर और पढ़ाई का, तो चाहे आप मेरे जैसा बैक बेंचर बच्चा ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं असर पड़ जाता है. True. तो द काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई चूज नाउ इज बिकॉज ऑफ माई अपब्रिंगिंग. आई माइट थिंक दैट माई चॉइसेस, बट देर एक्चुअली माई इंटायर फैमिली के चॉइसेस. इट डज नॉट मैटर कि वो अभी मेरी स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं कि नहीं, वो काम तो उन्होंने बचपन में कर दिया. Yes. क्योंकि हम सिनेमा के देवर सिनेमा लवर्स. आई रिमेंबर वी वेंट टू सी हम आपके हैं कौन ट्वाइस इन द सिनेमा हॉल. ये सारी फिल्में DDLJ, कुछ कुछ होता है, बैक टू द फ्यूचर, जुरासिक पार्क, ये सब हमने, करीब, ये सारी फिल्में, अंदाज अपना अपना, ये सारी फिल्में हमने सिनेमा हॉल्स में देखी हैं. So lovely. सो यू नो दैट्स द थिंग कि सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं होती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप जब आप बढ़ रहे हो एज अ बच्चा, छोटा बच्चा टू बड़ा बच्चा बन रहे हो, तो आप देख के रहो. हम लोग स्टेज प्लेज, हम लोग थिएटर, लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए जाते थे, थैंक्स टू मॉम डैड, बिकॉज दीदी का भी एंड मम्मी पापा का भी इंटरेस्ट होता था उसमें. True. एंड दे always knew that this is also important. So I was always on stage either with debates or performing different characters or dancing. तो ये हमेशा से मुझे encourage किया गया था.
they weren't the happiest when they saw my report card. And they made sure that they told me that. तो मेरी फटती थी, मतलब जब वो रिपोर्ट कार्ड आता था तो वो लेके जाने में हमेशा लगता था, ओ माय गॉड, और डांट पिटती थी. एंड वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई रियलाइज दैट, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, तो मैं हिस्ट्री से भागती थी क्योंकि मुझे लगता था अरे ये तो सिर्फ नंबर्स हैं, किसके बाद कौन आया, ये सब. बट देन नाउ आई रियलाइज दैट इफ़ आई अंडरस्टैंड कि एक अगर राजा या महाराजा या रूलर ने अगर कुछ किया तो वो क्यों किया और कैसे किया, Yes. that is something that is important, because be it a war strategy, but वो war की चीज़ आप अपनी डेली लाइफ में भी कर सकते हो. So I think upbringing is a very important thing, and I would like to tell everybody who's listening to this and watching this that please, कोई सपना ना बड़ा या छोटा नहीं होता है. तो अगर आप किसी को किसी भी वे में सपोर्ट कर सकते हो, एक किताब देख के या फिर सिर्फ उनकी शायद बात सुनकर, प्लीज़ डू दैट. बिकॉज आजकल बहुत नेगेटिविटी है, देर आर लॉट्स ऑफ न्यूज़ एंड थिंग्स दैट ब्रेक आवर हार्ट, दैट बॉयल आवर ब्लड. Absolutely. व्हाट कैन वी डू इंस्टेड ऑफ, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट और जो गवर्नमेंट को जो लेना होगा वो करेंगे, एंड प्लीज़ वॉइस योर ओपिनियंस, प्लीज़ टेक अ स्टैंड, दे विल डू देयर जॉब. व्हाट कैन वी डू? क्योंकि जब हम सब कुछ दूसरे पे छोड़ देते हैं ना, तो फिर हम ओनरशिप नहीं ले रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज. व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू एंड हु कैन यू इन्फ्लुएंस, इवन इफ इट्स somebody working for you, or if you're working with somebody, or even if you're in a bus train journey commuting with people, start conversations that make you think, that make you feel. That is very important. True. Absolutely. You know, we thought you are more kind of like a studious person. Oh no, not at all, not at all. In fact, मैंने तो पढ़ना इतना लेट स्टार्ट किया है, मुझे काफ़ी लेट समझ आई कि ये जो नॉलेज होती है किताबों में, और ये मैं भूल भी जाती हूँ. ये मैंने 5 साल पहले सेम चीज़, एक फेज़ आया होगा जो मुझे लगा कि यार मैंने तो किताबें पढ़ी नहीं है, कंटेंट देखा नहीं है, चलो करते हैं. एंड देन आई रीड 4-5 बुक्स इन अ डे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे गाड़ी में एक मैं अलग किताब पढ़ती हूँ, घर पे एक सोने से पहले अलग पढ़ती हूँ, सुबह उठ के अलग पढ़ती हूँ, फॉर माई डिफरेंट मूड्स. आई एम अ कैंसरियन, हाईली इमोशनल पर्सन. और फिर आई एम होपिंग दैट नाउ आई डोंट लेट गो ऑफ दिस फेज, बिकॉज बुक्स आर नॉलेज. और मुझे पता है ये सारी चीज़ें मैंने सुनी हैं, पर तब वो इनपुट नहीं हुआ उतना. या It's actually same with everyone. But again, coming to the studious wala topic, do you think like does scoring good marks, you know, really matters, or it really determines what we are today or what you are doing today in life? I think for me, ये Yeah, डिस्क्लेमर yes, मैं yes. दे रही हूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ ये सही है या ये गलत है या ऐसा ही होना चाहिए. These are my opinions and my words. In case it's edited out, that is also not in my hands. मुझे लगता है कि नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज पावर. अब नाउ आपको वो किस फील्ड में करना है, दैट इज योर चॉइस. समटाइम्स इट्स नीड बेस्ड, sometimes it is choice based. It is what you like, where you see yourself, which direction you want to take in life, what you want that journey to be. True. वो important है. Numbers to me are important, but they are not the ultimate thing. They are not the most important. Yes. पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक हमें बेस देता है, बट एक बेसिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आजकल कैलकुलेटर है, हमें चाहे वो मैथ्स का कोई भी फॉर्मूला हो, बट बेसिक्स तो जाना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि वो फिर हम पावर किसी और चीज़ को दे रहे हैं. अगर कैलकुलेटर एक दिन नहीं हुआ तो देन वी विल फील सो लॉस्ट. तो आई फील अपने ब्रेन को लेजी मत करो, क्योंकि एंड दिस इज अगेन समथिंग दैट माई डैड ऑलवेज यूज टू से कि रस्ट लग जाता है. रस्ट नहीं लगना चाहिए. सो नो मैटर आपका जो भी सिस्टम हो, चाहे आप गेम्स खेलो, चाहे आप किताबें वो पढ़ो जो आपको इंटरेस्ट करती हो, दिमाग में रस्ट मत लगने दो. मेक योर सेल्फ स्ट्रोंग, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली, एंड दैट कम्स फ्रॉम बुक्स और पॉडकास्ट और पीपल दैट यू स्पेंड टाइम विद. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. True.
Who was most strict in your family, mom or dad? I think depended on the situation. They both were जैसे हमें तब and again it's not about right or wrong, but we were not allowed night stays. Okay. हमें हमेशा चाहे हम कितने बजे भी जा रहे हैं घर पे आना था. But then having said that, when I came to Bombay, my parents gave me all the space. And they let me become the person that I want to become and do up my space the way I wanted to. उनके 10 बार नहीं कॉल्स आते थे कि क्या कर रहे हो, क्या खाया. They let me grow. So I think there were some decisions that they took. I don't know the reasons कि उन्होंने ऐसे क्यों किया. But touchwood, I have a very lucky set of parents and my sister and family who have motivated and encouraged me. They kept asking me questions even when they were unsure कि मतलब मैं जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, कि उनको भी नहीं पता था. तो वो सवाल हमेशा पूछते थे. वो दे ऑलवेज मेड मी फील सेफ दैट अगर मुझे दिल्ली वापस आना है तो वो मैं आ सकती हूँ. एंड जब आपको सपोर्ट घर पे मिल जाता है ना तो आपको वो ताकत मिल जाती है. ऐसे नहीं है कि मुश्किलें गायब हो जाएंगी आपकी लाइफ से, बट आपको एक वो बैटरी रिचार्ज मिल जाता है दैट कीप्स यू गोइंग, दैट यू नो कि यार कुछ भी गड़बड़ हो जाए ना, I have my people. In fact, even my friends, I have wonderful friends. Nupur, and I remember that she had told me कि she calls me Molu, and she said कि मोलू तू चिंता मत कर, तुझे अगर काम अभी नहीं भी मिल रहा है ना तो पैसे की चिंता मत कर, मयूर और मैं we will transfer to your account. And yeah, and thankfully that day never came. But just to know that you have friends like that who are ready to support your dreams. Absolutely. Because you are trying to follow that. I think that foundation, that circle, that is very important. So if you can be that for anybody, please, please, please be. So true. Shweta, when did you decide to become an actress? Because as you said, your father, IS officer and mother was a teacher. So coming from such a disciplined, background and taking this huge jump into such industry, how was it like? I feel इस इंडस्ट्री में डिसिप्लिन होने की बहुत ज़रूरत है. Okay. So those are the two things that I took from my family. I actually can't pinpoint when I wanted to be an actor because बचपन से जो मुझे memories हैं, I was a cloud. Okay. मतलब वो टूटू स्कर्ट पहन के मैं बस ऐसा ट्रोल कुछ स्टेज पे कर रही थी एंड आई ट्रूली इंजॉयड बीइंग अ क्लाउड. मेरा तब ये नहीं था. अगेन अब ये मेरी मेमोरी ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि वो 100% मुझे पता है कि जो मैं सोच रही हूँ वैसे ही था. बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तब वो ग्रीड या नीड नहीं थी किसी और कैरेक्टर बनने की. मैं खुश थी वो क्लाउड बन के. फिर आई रिमेंबर दैट एक बार दूरदर्शन पे एक शो आता था, टैलेंट शो टाइप का था, एक गोल सा स्टेज था एंड उस पर जाके सबको अपना जो भी टैलेंट था, अभी डांस और पोइट्री, वो करना था. एंड आई ड्रेस्ड अप एज अ पिंक बटरफ्लाई एंड आई वेंट एंड आई डिड दैट शो फॉर द जॉय ऑफ परफॉर्मेंस. बट क्योंकि मुझे लगा था कि जब मैं वो जीतूंगी तो मुझे कुछ प्राइज़ मिलेगा, और आई केम फर्स्ट और मुझे कोई प्राइज़ नहीं मिला. सो आई वॉज वेरी लेट डाउन. ना लिखा अरे मेरा तो प्राइज़ ही नहीं है. तो तब पापा ने मुझे वो खरीद के दिए थे जूते जिनमें बटन दबा के लाइट होता था. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. सो दैट्स द थिंग दैट इट्स नॉट कि आपको अवार्ड क्या है, बट आपको वो दीज आर थिंग्स दैट स्टे विद यू. कि when that didn't happen, when I didn't get a physical award from that, just that was not enough for me कि मैं पहली आ गई, मैंने joy of वो नहीं, मुझे चाहिए था कुछ और पापा ने मुझे दिया वो. And that is a memory that has stayed with me forever. So I think it was a mix of all these things. I enjoyed performing. I liked how I felt when I was on stage. I think I liked those butterflies that I felt before a performance, and it was something that I was doing for myself. मुझे ये नहीं लगता है कि रिपोर्ट कार्ड मिलता है एंड में कि तुमने ये किया, तुमने ये अच्छा किया, ये बुरा किया, ऐसे क्यों किया. Remarks. I want to be happy यार, और more than happy, I want to be at peace. कि मैंने जो किया उस सिचुएशन के हिसाब से, तब मुझे जो लगा, तब जितनी अकल थी, समझ थी, उसके हिसाब से किया, and I'm okay with that. True. If not acting, then what was the plan B? So if not an actor, I think psychology is something that has always very
has interested me, and 11th and 12th standard में मैंने पढ़ाई भी की थी, and so I think maybe something related there, and I'm a certified scuba diver. Oh wow. So बीच में वो फेज आया था जहाँ पे आई थॉट कि why can't I just do this, कि आइलैंड में रहो, रोज डाइव करो, और अगर आप इंस्ट्रक्टर हो तो आप लोगों को सिखा भी रहे हो, बता भी रहे हो. सो व्हाट अ fulfilling and giving life. But now I love acting. I want to tell stories. I want to make stories. I want to produce. That is what I want to do. Because I think for me, it's the bestest job in the entire universe. And I love, love, love what I do. So how did you manage to, if I have to talk about your finance and everything, how did you manage that? Because you said that you came in 2007 to Mumbai, and there was no relatives or no friends over here who were staying with you. जो भी किया सब कुछ आपने किया, right? So how did you manage that? And also उसमें एक अगर question मेरे को add करना हो, that is what was your that first paycheck memory? Because it's not easy. अगर कोई outsider, if it's coming to Mumbai and entering into this industry, it is not easy at all. So how was that experience? I think not just this industry. I think आप किसी भी इंडस्ट्री में आपको कहीं भी कुछ भी काम करना हो, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी. True. No matter the contacts that you have or the people that you might know, मेहनत is essential. ये बात हम जितनी जल्दी समझ जाए हमारा भी भला होगा, एंड जिस कंपनी में या जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उनका भी होगा. सो इट्स जस्ट अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी. When I came to Bombay, so I came as an intern, and I was working with the Times of India, where I learned a lot. I was an intern with this magazine called Femina. I have grown up reading Femina and Femina Girl. तो कई बार ना पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एक्सपीरियंसेस. तो क्या हुआ है ना कि ग्रोइंग अप आई ऑलवेज केप्ट ऑन हियरिंग दिस, एंड बिकॉज पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, मामा टीचर, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर मनी. वी न्यू कि जो पैसे हैं वो अब आपको कैसे स्पेंड करने हैं आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है, क्योंकि आपको मिलेंगे इतने ही. तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पूल ऑफ मनी है जहाँ से मतलब जो मांगूंगी वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है. तो इसलिए पैसे की रिस्पेक्ट हमेशा से थी, बट ये भी फिर आप मैनेज कर लेते हो कि आपको वो मैनेज कैसे करना है, द अमाउंट दैट यू हैव. आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. No matter which background that you come from, managing money is something that should be taught, that should be experienced, because that is something that you'll be doing lifelong. Never take money for granted. Yes. So when I came to Bombay, I came as an intern, and thankfully वो 4 महीने की internship थी. 2 महीने में ही मुझे they said that we want you to be full time with us, and then फिर वो I used to get my, I think 20,000 a month is what I used to get, and my life was very good. Sorted. Very sorted. Yeah, क्योंकि मुझे एक्चुअली कपड़ों का, ब्रांड्स का, ये सब शौक ना तब था ना अब है. Yes. मुझे एक्सेसरीज का था, बट वो नहीं था कि हर बार कुछ नया पहनना है. कुछ चीज़ें वो वेरी सॉर्टेड इन माई हेड, जो अब मैं किताबों में पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि वाह यार ये तो मेरी थॉट थी. I have always told my bankers, please don't tell me कि श्वेता अभी यहाँ पे इतना पैसा देना है तो now take on a project. I will earn doing the things that I love doing, and we will invest that money into things that will make more money, or into things that I want to do. That might be producing a play or a film or a series. बट मुझे ये नहीं तलवार चाहिए एक डेट की जो मेरे सर के ऊपर लटक रही है कि ओ माय गॉड ये करना है बिकॉज ये नहीं 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 नहीं. फॉर मी आर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट आई एम डूइंग, आई वॉन्ट टू बी चूजी अबाउट इट, नॉट बिकॉज कि मेरा ब्रांड का क्या होगा, बट बिकॉज ऑफ द एनर्जी एक्सचेंज. एंड आई विल मेक मिस्टेक्स, एंड आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट विद दैट. सो आई थिंक दैट इज वाई द रिलेशनशिप विद मनी हैज बिन ऑफ saving, but also celebrating.
एंड वो जो पहला चेक था आई रिमेंबर कॉलेज में मिला था क्योंकि हमारा एक ग्रुप प्रोजेक्ट था एंड वी हैड कम फर्स्ट इन दैट Okay. एंड आई थिंक मैंने वो कुछ किसी के लिए गिफ्ट्स नहीं खरीदे थे ना ही अपने लिए एंड आई थिंक आई हैड इन्वेस्टेड दैट Nice. Yeah. Nice. या So, one interesting topic which I want to cover in this podcast is about manifestation. So, what is manifestation and how do you do it? तो what is manifestation? I don't know. For you, I am basically. हाँ for me. Yeah. कि I don't think I'm in a place or space or understanding to say that because there are a lot of things that I don't understand about manifestation. अगर मैं कोई चीज़ चाहती हूँ with that purity of intent, without disrespecting anybody, without कि अरे इसको यहाँ हटा देते हैं, इसका ये काट लेते हैं, ये वैसे कर लेते हैं, नहीं. आप दूसरों के बारे में मत सोचो. आप ये सोचो कि आपको क्या करना है. एंड ये नहीं कि 1 + 1 = 2. वो नहीं है कि ये होगा तो वैसा होगा, नहीं. आपको क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल जब मैंने कहानी देखी थी, आई हैड सीन विद मॉम डैड, दिल्ली में हम लोग थे PVR में. वन आई हैड सीन दैट, मेरे दिमाग में ना जाप की तरह चल रहा था, मुझे नवाज भाई के साथ काम करना है. आई वॉन्ट टू वर्क, आई स्वेयर. एंड थ्रू आउट वो मूवी, एंड आई स्टिल रिमेंबर दिस विजुअली, हम सिनेमा हॉल से निकले, हम गाड़ी में बैठे, हम घर आए और मेरे दिमाग में नॉन स्टॉप वही चल रहा था. आई डिडंट नो इन व्हाट कैपेसिटी. मैं तो सोच रही थी दैट इन अ लेसर रोल ऑपोजिट हिम, फर्स्ट फीचर फिल्म, ये हाँ मतलब लीडिंग तो सोचा ही नहीं था. पर ये सोचती गई मैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ जाके कनेक्ट हुआ. बिकॉज हाउ इज दैट पॉसिबल. Yeah. I have always wanted to play a mafia queen. Okay. I have wanted to work with good people. It is not a coincidence. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि people के साथ जिनके अच्छे experiences नहीं होते हैं, they don't want to work with good people. But I think there are some changes that you can do in yourself to attract. Our body is, आप मान लो, is a magnet. What you give out is very important, and what you can gift yourself, one very important thing is a good mood. No matter what the situation is, of course it will be tough, but it is beyond good and bad. It is about being strong and weak. And by strong I mean being morally strong, कि जब आप मुश्किल सिचुएशन में होगे तब भी क्या आप वही फॉलो कर रहे हो जो आप प्रीच करते हो. Exactly. या जो आप बिलीव करते हो, क्योंकि आपके गुड डेज में वो करना बहुत. एंड दिस इज समथिंग इनफैक्ट आई रेड इन अ बुक, बुद्धिज्म पे थी. उसमें ये था कि अगर आप लेट्स से यू आर गोइंग इन द होल जर्नी ऑफ लव एंड काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस, यू कैन बी चूजी कि आई विल बी दिस ओनली टू माई पीपल, बाकी लोगों को मैं जज करूँगी. आप अगर डिसाइड कर रहे हो कि आप लेस जजमेंटल होगे, इट इज़ विद द इंटायर वर्ल्ड. सो देन दैट इज ऑल्सो विद वट एवर क्राइम इज हैपनिंग or whoever is doing wrong. Yeah. And that's, of course, it's difficult. That's why it's not easy to be evolved. It will take time. It should take time. तो आप किस टाइप के पर्सन होना चाहते हो, आई थिंक वो अगर आप जस्ट कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ, आई कीप डूइंग दैट, दैट सही और गलत से निकलते हैं, मुझे क्या होना है वो करते हैं. एंड सो कीप, I think some लोगों के लिए writing might work, but मेरे लिए what works is I keep putting those thoughts out. कि for example मुझे sunlight बहुत पसंद है, so I always wanted कि ऐसी जगह हो, and it's not about कि पैसा, कि घर ऐसा चाहिए, पर मेरे दिमाग में ये था, आई डोंट नो फ्लोर क्या चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए कि नहीं, या फिर कितने कमरे होने चाहिए, आई डोंट नो अबाउट ऑल दैट, बट आई ऑलवेज इमेजिन दैट आई वॉन्ट अ रूम जहाँ पे बहुत सनलाइट हो. दैट इज़ वॉट आई अट्रैक्ट. तो आई थिंक जब ऐसे गोल्स आपके होते हैं जो थोड़े ज़्यादा ब्रॉडर होते हैं, तो थिंग्स फॉल इन टू प्लेस. आई ऑलवेज wanted to be with somebody who's very simple and understanding, and that is somebody I have married, my best friend. Yes. He is 5 years younger, he is 1 foot taller. ये सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इंसान कौन है कौन हो वो मैटर करता है. सो आई फील वो जो ट्यूनिंग है ना, हम सब फ्रीक्वेंसी अगर बाहर हम दे रहे हैं तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी की सेटिंग ठीक कर लो. जो सोच है ना, वो उसको मटीरियल मत करो, उसको आप ये मत करो कि उसे कोई फॉर्मूला मत बनाओ. आप
अपने आप से ट्यून इन कर लो और फिर उसको सैटेलाइट से कनेक्ट कर दो जिससे कि वो और फैल जाए. No, no, I also do believe in manifestation because I feel whatever has happened so far is also an outcome of manifestation for me. So, whatever is happening right now in life is also a part of manifestation for me. And the best part, which I like, so as you said, there are n number of things you can do in manifestation. You can write, you can visualize, there are so many things you can do. But the best part, which I like about manifestation, is just be positive. You know, just think positive, be in that positive zone. And it is difficult to do that. Yeah. Because even you and I, जो हम believe करते हैं in being positive, but there are days जहाँ वो positivity Absolutely. नहीं दिखाई देती है कहीं. And we have this information and knowledge. ये हमें पता है. Yes. And that's okay. आपको जबरदस्ती अपने आप को पॉजिटिव रहने की जरूरत नहीं है. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू acknowledge feelings Yes. and emotions of all kinds. Even if you're feeling jealous, it's all right. Try to understand कि ये क्यों फील कर रहा हूँ. True. आई थिंक वो भागो मत फीलिंग से. आप समझने की कोशिश करो कि जो भी आप, अगर बुरा भी लग रहा है, अगर रोने का भी मन कर रहा है, रो ना. मुझे तो लगता है कि इनफैक्ट क्राइंग इज being strong. It's not easy to cry in front of others. Yeah. It takes a lot of courage. It's not a sign of weakness. Please cry. You will feel better. You want to cry again and again? Keep doing that because it's an outlet. True. तो पॉजिटिविटी ढूंढो, पर अगर नहीं आ रही है तो ब्रेक ले लो. Yes. चाय पी लो, दोस्तों से बात कर लो. Yes. वो आज नहीं तो कल आप उसको ढूंढ लोगे या वो आपको ढूंढ लेगी. It is that simple. It is simple. Yes, Yes. we are the ones who complicate things. Absolutely. And the most important it teaches you is just love yourself. You know, self-love. So, do you also treat yourself when you achieve something? Self-love or maybe pampering yourself. ऐसे होता है कभी? Pampering, I think for me, pampering is also not online shopping, Yeah. but sometimes it also is. If there is something that I like, because I value all the things that I get. There are things like, for example, few of my favorite brands. This is from Quirksmith. I've had this for, I think, maybe 10 years now. This is Tribe, Amrapali. Again, actually, Tribe and Quirksmith. This is something that is sustainable. Yes. From another of my favorite brands, Nete. It's online shopping and वहाँ पे सिर्फ sustainable चीज़ें हैं. These earrings were a gift. So all these things have been with me since years. मेरी चप्पल भी थोड़ी वो आगे से चिप्ट भी है, but मुझे चलेगा क्योंकि मुझे अच्छी लगती है. True. तो मैं ये सब करती हूँ अपने लिए. तो आप चाहे वो जो शॉपिंग भी कर रहे हो या पैम्पर आप कर रहे हो विद गुड कंटेंट या फिर गुड फूड, ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, बट बी रिस्पॉन्सिबल. क्योंकि वो आई थिंक इम्पॉर्टेंट है. थिंग्स लाइक होर्डिंग, वो फिर कब हैबिट बन जाती है ना, वो फिर आप होर्डिंग सिर्फ चीज़ों में नहीं, आप मेमोरीज में, लोगों में भी करने लगते हो. बिकॉज दिस इज समथिंग दैट अ फ्रेंड ऑफ माइन हैड सेड, एंड मे बी ही रेड इट समवेयर. I'm sure he did. How you do something is how you do everything. Okay. So I think if you're mindful about few things in life, तो वो बाकी में भी सीपन कर लेंगे. So do that. It is very important to pamper yourself. But that balance is very important. कि इतना भी pamper मत करो कि आप वो, मतलब अगर मुझे वड़ा पाव पसंद है या चाट पसंद है तो मैंने इतना खा लिया that I'm gassy then, कि वो डाइजेशन में ही प्रॉब्लम हो जाए. So be mindful. Please pamper yourself. People around you, ask them to pamper you. I think वो भी ज़रूरी है कि कभी कभार आपका बस मन करता है कि आप किसी की लैप में आप अपना सर रख दो और कोई बस आपके सर पे ये कर रहा है. बट आजकल हम वो इतने स्ट्रॉन्ग और इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट हो गया ना कि वो बोलने में भी हिचकिचाते हैं हम. तो go with the flow. You think people are taking it lightly? Like as you said, like pampering yourself or the mental therapy which we can talk about. You know, आज के इसमें like people are not taking it that seriously. जो हम stressful life में जी रहे हैं. You know, like being an entrepreneur and doing the everyday dealing with different type of clients and then doing the podcast, this thing. Same with your journey, you know, there are different characters you play. जो journey है उसमें do you think like mental therapy, mental health को हमें priority पे रखना चाहिए as compared to other things which we do in our day-to-day life? I think we are in a great space and place where now at least mental health की awareness है. Yes. ये पहले ना, अरे कुछ नहीं हुआ है,
डॉक्टर के पास क्यों जाएगा, मेंटल इलनेस लगता था पहले। एग्जैक्ट, ओके कुछ गलत है Yeah. और अगर गलत भी है तो उसमें क्या गलत है भाई? True. मतलब कुछ गलत है तो फिर उसको ठीक कर लेते हैं, सोल्यूशन ढूंढते हैं। हम गलती से इतना घबराते क्यों हैं? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर ईच अदर आउट। ना होता क्या है कि जब भी कोई ऐसा एक फेज आता है या हमें चीज़ पता चलती है, अब उसके साथ मार्केटिंग चीज़ें भी आती हैं, बिकॉज पीपल नीड टू मेक मनी, हाउसेज नीड टू बी रन, फूड नीड्स टू बी हैड। वो प्रोडक्ट या उसको वो मार्केटिंग गिमिक जैसे ही बनाओगे ना, वो फिर आई थिंक वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट सेलिंग मोर products. True. And then that does not help. That might help, but that won't cure it. तो वो बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ सबको, इनफैक्ट स्लीप हम लोग पहले कितना सेलिब्रेट करते थे कि यार यू नो आई पुल्ड एन ऑल नाइटर, वी वर प्राउड अबाउट दिस, ऑल ऑफ अस, आई एम गिल्टी ऑफ दैट कि आई स्लेप्ट ओनली फॉर 2 hours और इतना काम था। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, द आवर्स एंड द क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अब मतलब जब बड़े हमें कहते थे तो हमें लगता था नहीं क्या बोल रहे हैं, अब जब धीरे धीरे उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपको रियलाइज़ हो रहा है यार बात तो सही थी, तो सही बात है। सो आई थिंक दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ़ यू आर डूइंग एनी थिंग दैट्स हेल्दी, टू शेयर इट विथ अदर्स। प्लीज डोंट प्रीच, डोंट बी ज्ञानी, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई ट्राई टू डू माई सेल्फ, कि मुझे ऐसा नहीं कि मुझे कुछ समझ में आ गई है तो सबको समझ में आना चाहिए, बट आई एम जस्ट डूइंग इट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ दैट इफ़ आई हैव फिगर्ड दिस आउट, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं भी एक अलग स्पेस में थी, पर मेरा अब फ़ायदा हुआ है कुछ करके, बी इट जलनीति, बी इट डूइंग योगा, बी इट वर्किंग आउट। आई स्टार्टेड प्रॉपरली वर्किंग आउट व्हेन आई वाज 35, तो अगेन बाद में अकल आई, पर जब भी आए वो प्लीज़ दरवाज़ा खुला या विंडो खुला रख दो कि जब भी अकल आए तो धीरे धीरे आती रहे। True, true. Let's make it more linear conversation. Tell me, what is love? What is love for you? Love for me is how a person makes you feel or how a thing makes you feel. Okay. It's about respect. It's about understanding. And that understanding doesn't just have to be with words. भाई कि अगर आप किसी के साथ हो, आप खा रहे हो, आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, आप रो रहे हो, just you being yourself. When you don't have to pretend to be somebody else. When you're comfortable being you and you accept the person or the animal or a thing being themselves. I think love is letting people be and accepting them as is, hoping for better things for them and yourself, and dreaming together and pushing each other, motivating each other to be better versions of ourselves. Love for me is lots of color. It is a lot of smiles. It's a lot of tears. Yeah, love is a beautiful feeling which I think we should experience more of. What do you think keeps the healthy marriage going in a relationship when both the partners are working? मैरिज में स्पेस बहुत ज़रूरी है। Yeah. मैरिज में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक दूसरे की पर्सनालिटी की नहीं, बट एक दूसरे के सपनों की, कि वो जो पर्सन चाहता है वो क्या चाहता है। एंड आप लोग दोनों शायद साथ में रहते हो पर हर चीज़ सेम नहीं होगी। इट इज़ नॉट दो जिस्म एक जान। True. प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू बी दैट। आई एम श्योर मे बी माइनॉरिटी में मतलब कुछ लोग होंगे जिनके लिए वो वर्क करता होगा, पर एटलीस्ट जो मैंने देखा है with the family and friends and people around me and my own relationship, be and celebrate the individual that you are. Be a pair. And when you both are individual and when that magic connects, तो आप जिस टाइप का जो कपल हो या पेयर हो, वो दोनों को आप वो फीड इन करोगे into that energy and that will multiply. So I think that is very important when both people are working. किसी एक का सपना दूसरे से ज़्यादा important नहीं है। सपना ही सपने होते हैं, इमोशंस भी वैसे ही होता है कि कई बार लॉजिक नहीं वर्क करता है, तो कई बार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्ट मोस्ट टाइम्स इट्स टू हैव एन ओपन चैनल ऑफ फॉर कम्युनिकेशन। बोल दो, अज्यूम मत करो यार कि मैंने तो उस दिन ये बोला था, मैंने ये मेरी बॉडी लैंग्वेज से कोल्ड ट्रीटमेंट, ये सब नहीं, यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी।
उससे अच्छा है, एंड इट्स नॉट ईजी, आई वॉज नॉट लाइक दैट. चीता हैज guided me to be this person who is now more vocal about my emotions and feelings. क्योंकि जब हम अंदर उसको बांध के रखते हैं ना, तो उससे अगेन किसी का फ़ायदा नहीं होता ना, हमें अच्छा लगता है. तो थोड़ी मुश्किल होती है बोलने में कि क्या बोलेंगे, सामने वाले को कैसा लगेगा, यू डोंट वांट टू हर्ट देयर फीलिंग्स, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू पुट इट इन वर्ड्स. चाहे आपको लिख के बोलना हो, आपको ईमेल भेजनी हो, टेक्स्ट करना हो, चिट्ठी लिखनी हो, या फ़ोन पे बोलना हो, या सामने ओवर वाइन, कॉफ़ी, टी, वट एवर इट माइट बी. But please talk, because when we communicate is when we connect. Absolutely. When was the first time you met Chaitanya? That was for a play, and that is how we had met at Prithvi House. हम लोग एक play कर रहे थे called The Interview, written by Siddharth Kumar, directed by Akash Khurana, and we still keep thanking them क्योंकि वो play की वजह से हम मिले, and we just knew we want to be together because of how he made me feel. I couldn't stop laughing. I was just giggling. I was smiling. And I knew that I want him to be my best friend. ये मुझे clarity थी कि ये इंसान तो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, because he just made me happy. And I could behave totally, मतलब मैं कुछ भी बोल रही थी, and the way he was responding, it was so nice. The flow of energy, the flow of smiles, when your eyes sparkle, I think that's very important. So he made my eyes sparkle. So true. Tell me biggest green flags in guys. Green? Yeah. Green is, I think one is very important, how you treat the person and the people around. क्योंकि again, somebody who's not judging people on caste, class, height or your physicalities, that is very important. आपकी empathy क्या है, वो बहुत ज़रूरी है. And कुछ लोगों की EQ कम होती है, which is absolutely all right, because some people are like that. But then even understanding that, don't try to change the person. ये दोनों, for girls and boys, in fact, I would say green flags ये girls के लिए भी हैं, boys के लिए भी हैं. Okay. जो आपको समझता हो, जो आपको सुनने के लिए तैयार तो हो, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. Men who are, सिर्फ दरवाज़ा खोलने की बात नहीं है, बट लिटरली जो ट्रैम्पोलिन बन जाए आपके सपनों के, कि आप where the conversation is free flowing, where the ideas are like that, जहाँ पे at the end of the day you can just speak to this person about यार आज खाने का ये मन है, या फिर आज मेरी बॉस ने ये बोला, या फिर होना चाहिए मैं करे. वो डर नहीं होना चाहिए कि सामने वाला क्या सोचेगा. All those are green flags for me. True. Okay. Tell me, does age schedule really matters? कि ये टाइम पे ये एज में शादी होनी चाहिए, ये एज में करियर होना चाहिए, घर होना चाहिए. वी ऑल हैव दैट थिंकिंग. आई मीन सोसाइटी ने वो प्रेशराइज करके रखा हुआ है. डज रियली दैट मैटर्स कि बाय 28 29 तक शादी हो जानी चाहिए, और बाय 30 31 तक घर हो जाना चाहिए आपका. व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? आई थिंक ये सारी चीज़ें पहले थी फॉर अ रीज़न. या एज अ टेम्पलेट होती है ना, जैसे आप टेम्पलेट से आप कैन गाइड यू डोंट हैव टू स्टिक टू इट. तो आप अपने स्वाद अनुसार करो. शादी से क्या होता है कि अगर आपके बच्चे पहले हो जाते हैं, ऑब्वियसली योर बॉडी इज इन अ बेटर शेप. एंड बाय शेप आई डोंट जस्ट मीन द फिजिकल शेप, बट आपका जो आप रिकवरी आपकी बेटर हो जाती है. फिर क्या होता है कि वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड दैट माय फ्रेंड्स हु हैड किड्स अर्लियर, अब उनके बच्चे बड़े भी हो गए हैं, सो करियर में भी अब नाउ दैट हेल्प्स. सो कोई राइट और रॉन्ग नहीं है. ये एक गाइड बुक की जैसे, आप रूल बुक नहीं है, ये एक गाइड बुक की तरह अगर आप यूज़ करोगे ना, तो आई थिंक वो बेटर होगा. आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 33. सो फॉर मी मोर देन द नंबर, इट इज़ आप शादी किससे कर रहे हो. Yes. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये नहीं कि अभी मतलब जो भी अब आजकल आइडियल एज क्या है शादी की, आई डोंट नो, बट लेट्स से अगर कोई कह रहा है 26, तो 26 हो गया तो ये मतलब थोड़ी ना आप शादी कर लोगे. आप इंसान कौन है, क्या पढ़ाई की है, करता क्या है, नॉट जस्ट करता है क्या है इन टर्म्स ऑफ कि फाइनेंशियली करता क्या है, पर उसकी सोच क्या है.
करना क्या चाहता है लाइफ में. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. घर का आई थिंक वही है कि जब अगर आप जो भी एज है कि 30-31 पे अगर घर हो जाना चाहिए जो भी है, आई थिंक इट इज़ अबाउट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि अगर आप फिर आपको कुछ भी करना है, आपको ये तो पता है कि चलो एक छत तो है आपके सर के ऊपर. सो आई थिंक किसी रूल को ऐसे मत लो कि यही पत्थर की लकीर है और ये चेंज नहीं हो सकती है. लेट्स लर्न फ्रॉम दैट एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई वाज दैट सेड. इफ यू अग्री विद इट देन डू इट. बट जस्ट बिकॉज द सोसाइटी हैज सेड समथिंग, क्योंकि सोसाइटी को बहुत चीज़ें नहीं पता है और सोसाइटी में बहुत सारे अभी बदलाव भी आ रहे हैं. Yes. एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. वी डिडंट हैव सोशल मीडिया, वी डिडंट हैव AI, देयर आर सो मेनी थिंग्स वी डिडंट हैव. बट तो वो अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है एंड वी आर वेरी गुड एट अडेप्टिंग. सो लेट्स अडेप्ट टू द new world that is growing around us, and let's also take responsibility for this new world that we are creating, because we are changing the fabric of the society. Yes, yes. वो हमारे हाथ I में agree, है. yeah. तो वो थोड़ा सोच समझ के करते हैं. So, Shweta, what are the misconceptions people have about you, maybe when they first meet you in life? वो कहते हैं ना, first impression कैसा था, you know? So you can share something like that. Misconceptions, so I think ये तो मुझे शायद नहीं पता होंगे क्योंकि मैं तो अपनी दुनिया में रहती हूँ. वन वेरी क्यूट थिंग समबडी सेड, आई मेट देम एट द चंडीगढ़ एयरपोर्ट एंड दे सेड कि अरे ऑन स्क्रीन तो आप बहुत दबंग लगती हैं. So I was like, okay, all right. लोगों को लगता है कि मैं बहुत, लोगों को लगता है कि मैं छोटी नहीं हूँ जितनी छोटी हूँ. तो आई एम ऑल ऑफ 5 feet एंड वेरी हैप्पी. एंड और क्या मिसकंसेप्शंस हैं, मतलब मुझे तो कि मैं पढ़ाकू या मैं स्टूडियस या ना आई वॉज अ बैक बेंचर. सो या आई थिंक लोगों को लगता है कि मैं फ्रंट बेंचर रही हूँ ऑल माई लाइफ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. आई हैव ट्रूली एंजॉयड बीइंग अ बैक बेंचर एंड नाउ स्लोली बीइंग अ फ्रंट बेंचर इन थिंग्स एंड सब्जेक्ट्स दैट आई लाइक. Yes. जो मुझे अगेन होपफुली पहले समझ आ जाती, बट अब आ रही है तो ठीक है, अब हम करेंगे. या For me, it was like people used to think that I'm rude. आई थिंक यू आर लवली. आई थिंक यू आर वेरी इजी टू टॉक विद. एंड आई थिंक कई बार जब हम लोगों को समझते नहीं है तो हमें लगता है कि अरे वो तो ऐसा है. Yes. लेकिन वो ऐसा क्यों है, अगर वो हम समझ लें तो हमें वो इंसान भी समझ में आ जाएगा. एंड आई डोंट थिंक पीपल, I think maybe because you were choosy about what you Maybe. want to say or the people you want to approach, maybe that comes across as rude. मुझे मेरी एक फ्रेंड थी, इनफैक्ट क्या मसला लाइफ, सना शेख. उसने बोला था कि तू इतनी अप्रोचेबल नहीं है, तुझे आने से पहले ना लोग सोचते हैं तुझसे बात करने से पहले आई यूज्ड टू बी लाइक ये कि नहीं ऐसा क्यों है वो है. पता नहीं रियलाइज कि अच्छी बात है, गुड. अगर लोगों को थोड़ा चाहे वो डर हो या नहीं हो तो होना चाहिए, क्योंकि स्पेशली एज अ गर्ल आई लाइक दैट. तो मत सोचो मैं तुम्हारी सहेली हूँ, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की. अगर तुम होगे देन यू विल रियलाइज कि मैं तुम्हारी सहेली हूँ, बट अगर नहीं है आई थिंक बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो बट या आई थिंक वो सबका परसेप्शन अलग हो सकता है कि हमें लगता है कि हम ऐसे हैं, बट हम वैसे अगर नहीं अक्रॉस आ रहे देन आई थिंक इफ यू कैन फिगर आउट दैट ओ दिस इज नॉट हाउ आई वांट टू बी परसीव्ड, सो व्हाट कैन आई चेंज व्हिच विल हेल्प मी पोर्ट्रे द इमेज आई वांट, एज लॉन्ग एज इट्स ट्रू. मतलब वो इमेज के वो मास्क के पीछे मत छुपो या वो मास्क मत पहनो बिकॉज दैट इज मोर एक्सेप्टेबल. तो आई थिंक जस्ट what everybody says, you do you, which is obviously not easy, but I think the first step of you do you is you figure out who you is, and then the rest will follow. True. Time just flies by. You know, when two great personalities are having a conversation. So, Shweta, it's an absolute pleasure, you know, to have you over here. Thank you for doing this. Thank you for coming to our show, Witty and Wise. Can we end this podcast with 2 of your poetic favorite lines? Ooh. सितारों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी. मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी. Wow. Thank you so much for coming here. Thank you, Om. This was lovely and I hope
सब देखते और सुनते हुए भी उतना ही enjoy करें जितना हमने किया है. Yes. And all the best to you. I you so really much. wish you lots of love and luck for all the dreams that you want to do, all the new things that you want to try, and all the things that you want to say. Thank you so much. Thank you. It was lovely meeting you. Same here. Thank you. And that's a wrap for today. Thanks for joining us on this episode. If you had fun, hit like, share, subscribe, and don't forget the bell notification or tell a friend. Spread the love. We'll be back soon with more to keep your wits sharp and wisdoms flowing. Stay clever, stay curious. See you next time.